All right, a very good morning to all of you. Today we are going to start with a very important branch of computer science, that is software engineering, where we often face problems and we land up in issues because even if it is your recruitment examinations or even if it is your semester examinations, they ask a lot many questions from this particular paper, that is software engineering. So let us just get started with software engineering. See, we are going to start with the basic definition. Now, I am keeping the target of completing the entire syllabus of software engineering in 4 to 5 videos. So, for that, you have to complete the previous lectures, you have to prepare notes, etc., etc., things that sir has already informed you. Okay, so let us just get started with the basic definition of software engineering. So we define software engineering as an engineering branch which is associated with the development of the software product. What we are going to do, we are going to develop a software product, and that software product has been developed using well defined scientific principles, methods and procedures. मतलब मेन हमारा काम होता है कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है which is efficient and reliable enough, जिस पर आप rely कर सकें and it should be efficient. Okay, then सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर हम दो प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. वन इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन एंड अदर वन इज decomposition. What is abstraction? Abstraction is to consider only those aspects of the problems that are relevant for a certain purpose. आप सिर्फ वही चीज़ों को कंसिडर करिएगा जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है. बाकी सारे फैक्टर्स को यू कैन हाइड और यू कैन सप्रेस. So consider only those aspects of the problem that are relevant for certain purpose and suppress the other aspects that are not relevant for the given purpose. मान लीजिए if I am talking or if I am preparing an LMS, तो उसमें मुझे ये ज़रूरत नहीं है कि उसमें क्या मैं कैंटीन अलायंस दूंगी, क्या मैं कुछ और रखूंगी. तो which are relevant only those features to be included, irrelevant features should be discarded or they should be hidden, you can say. ठीक है. Then the other approach that you have to, which is going to help you in tackling the problem complexity, that is decomposition. Now decomposition plays a very crucial role. What happens in decomposition, here a complex problem is divided into smaller problems and the smaller problems are solved one by one. मान लीजिए एक बड़ा सा एक प्रोग्राम है, you are facing problems, so you decompose it into several problems and then you solve a particular problem and then in totality your complete problem is solved. So that is your decomposition. Then what is the need of software engineering? Software engineering पढ़ने की ज़रूरत क्या है? See, when we have large software, then we require some engineering to be done on that particular software. So yes, because of the large software, we require software engineering. Then for scalability purpose, what is scalability? Scalability का English का में भी meaning यही होता है कि it is the capacity to be changed in size हो गया या in scale हो गया. तो आप इस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगाकर अपने प्रोजेक्ट को रेडी करिएगा, अपने सॉफ्टवेयर को रेडी करिएगा, which should be capable to be modified. It should be capable to the changes. Okay. Then cost related factors. Then dynamic in nature. Dynamic in nature मतलब it should be constantly changing with the changing with the span of time. ठीक है. तो उसके हिसाब से आपका सॉफ्टवेयर भी चेंज होना चाहिए, changing behavior दिखाना चाहिए. Then for quality management. So for these many purposes, yes, we require software engineering. Then what are the characteristics of a good software? एक अच्छा सॉफ्टवेयर होने के लिए कुछ characteristics होने बहुत mandatory हैं. What are they? See, the first thing is it should be operational. ठीक है, मतलब it should work properly, अच्छे से काम करना चाहिए. Then it should be transitional. Again the same point, it should be able to be changed. It should be able to transit. Then for the maintenance. Maintenance के लिए भी ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे, on the following grounds you can say a software is a good software. Then next thing, that is SDLC, that is software development life cycle, a very important topic from your examination point of view. So देखिए जो लाइफ साइकिल है इसका मतलब ये है, आप जब अपना सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो वो कुछ फेजेस से गो थ्रू करती है. What are those phases? What are those activities? That is something we call as software development life cycle. इसके लिए हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं. You can see there are 5 models. One is classical waterfall model, then iterative waterfall model, then prototype model, then evolutionary model and then spiral model. ये सारे मॉडल्स क्या होते हैं? लेट्स जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन. सबको एक बार हम लोग देख लेते हैं. सी,
First, we are talking of the classical waterfall model. Though the classical waterfall model is elegant and intuitively obvious, it is not a practical model in the sense it cannot be used in the actual development, software development projects. Actual projects को develop करने के लिए हम इसको use नहीं करते, but it is a good way, it is a theoretical way of developing a software. ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, you can see. Actually, we have, you can see, actually we have 6 points. One is feasibility study. Then we have the requirement analysis, design, coding, testing, maintenance. यही आप करते हैं अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं. लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये सारे मॉडल्स में इंक्लूडेड है. ऐसा नहीं है कि ये फेज सिर्फ क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में बाकी में नहीं है. इट इज इंक्लूडेड इन ईच ऑफ द मॉडल. सो फर्स्ट लेट अस जस्ट गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. what are these phases actually. तो पहले आप इन phases को पढ़ लेते हैं, उसके बाद we will come back to waterfall model. So the first phase is feasibility study. Feasibility study का मतलब होता है ना class that it should be financially and technically feasible to develop a product. अब कोई भी product बना रहे हैं वो technically भी sound होना चाहिए, वो financially भी sound होना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं, here is an example. For example, at first, project managers or team leaders try to have a rough understanding of what is required to be done by visiting the client side. They study different input to the system and the output to be produced by the system. Different input दिया जाता है, output देखा जाता है. Input दिया जाता है, output देखा जाता है. And then they examine each of these solution. And based on their analysis, what they do, they pick up the best solution and then they determine whether the solution is feasible financially or technically. Yes or no. इस तरीके से हम इसको बोलते हैं feasibility study. This is the first phase and this is very important. Then next phase, that is your requirement analysis and specifications. Requirement analysis का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि आपके customer के exact requirements क्या हैं. What are the exact requirements of the customer and then you document them properly. ठीक है. अब दो इसमें एक्टिविटीज बेसिकली होता है. एक होता है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना एंड सेकंड इज द एनालिसिस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. रिक्वायरमेंट को गैदर करने का मतलब है कस्टमर के क्या नीड्स है वो आपने पहले इकट्ठे करे एंड इकट्ठे करने के बाद यू आर पुटिंग इट, यू आर ऑर्गेनाइजिंग इट इनटू एन एसआरएस डॉक्यूमेंट. आप एक सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आपके कस्टमर को ज़रूरत क्या है, आपको बनाना क्या है, आपको चाहिए क्या है, उसी के हिसाब से आप सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे. देन नेक्स्ट phase, that is the design phase. Next phase क्या है? Design phase. So the goal of the design phase वो ये है कि आपने जो भी SRS में स्ट्रक्चर किया है it should be implemented. ठीक है, it should be implemented using a programming language. That is something known as design phase. Design phase में आप directly design करेंगे. Then there is coding and unit testing. तो देखिए नेक्स्ट जो फेज है कोडिंग फेज, इसको हम कभी कभी इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोलते हैं. इसका मतलब होता है ये आपके सॉफ्टवेयर डिजाइन को सोर्स कोड में डिवाइड करेगा. दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ. हर एक मॉड्यूल को लेकिन यहाँ पर हम लोग यूनिट टेस्ट करते हैं. वी आर टेस्टिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल इन आइसोलेशन सो दैट क्या होता है इससे हमारे को जो डिबग करने में, एरर्स को डिबग करने में बहुत easy हो जाता है. That is what is written here. So each module is unit tested to determine the correct working of all the individual modules. It involves the testing of each module in isolation as this is the most efficient way to debug the errors identified at this stage. Right? Next phase, that is integration and system testing. Integration का मतलब ये है यहाँ पर the modules are integrated in a planned way. आप modules को एक planned तरीके से integrate करते रहेंगे. ठीक है. एंड अ सेट ऑफ प्रीवियसली प्लान्ड आर एडेड टू इट. और जो प्रीवियसली प्लान्ड मॉड्यूल्स थे उसको आप स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करते रहेंगे. मतलब क्या कर रहे हैं, जो भी आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स है जिसमें आपने कोडिंग करा है, यूनिट टेस्टिंग किया है, उनको अब आप इस वाले फेज में इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेट करने के बाद देन यू परफॉर्म एन ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग दैट इज बीइंग कैरी आउट. ओके. क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग की बात करी गई है तो एक छोटा सा ब्रीफिंग मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि सिस्टम टेस्टिंग इज ऑफ 3 kinds. One is alpha testing, another is beta testing and the last one is acceptance testing. Alpha testing का मतलब ये है that this is being performed by the डेवलपमेंट टीम. जो भी डेवलप कर रहा है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को वो उसको टेस्ट कर रहा है तो उसको मैं बोलूँगी अल्फा टेस्टिंग. बीटा टेस्टिंग का मतलब ये हुआ इट इज परफॉर्म बाय अ फ्रेंडली सेट ऑफ कस्टमर्स. कुछ कस्टमर्स ले लिए एंड दे आर बीइंग आस्क्ड टू टेस्ट द प्रोडक्ट जो आपको चाहिए था वही है कि नहीं है. सो दैट इज बीटा टेस्टिंग. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये है इट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कस्टमर हिमसेल्फ. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ब्रीफिंग है ये.
कस्टमर से खुद से हम देख लेते हैं, सो दैट आफ्टर द प्रोडक्ट डिलीवरी इट इज डिटर्मिनिंग वेदर द कस्टमर इज गोइंग टू एक्सेप्ट द प्रोडक्ट और रिजेक्ट द प्रोडक्ट। तो उसके लिए हमें ये टेस्टिंग फेज करना पड़ता है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है, अगर आपको लगता है कि कुछ हमें मेंटेनेंस देना है अपने प्रोडक्ट में तो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, लेट्स जस्ट कम बैक टू द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। तो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में क्या हो रहा है क्लास, सबसे पहले फीजिबिलिटी स्टडी हो रहा है, अब आपको पता ही है क्या है, देन यू आर गोइंग टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन यू आर गोइंग टू द डिजाइन, then you are going to coding, and then you are going to testing, and then lastly you are maintaining it. matlab there is no go back. Once you are saying that this is the feasibility that is being accepted, that yes, this is the final result of the feasibility, yes, this is the requirement and we are considering it at final. ऐसा नहीं हो सकता कि स्टेज 1 से जब स्टेज 2 पे आ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं feasibility स्टडी में मेरा कुछ मिस हो गया, चलिए इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं। या जब आप कोडिंग कर रहे हैं, आप डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि कस्टमर को ये रिक्वायरमेंट आ गई है तो चलिए हम इस रिक्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यही यहाँ पर हमने मेंशन किया है इन द form of shortcomings also. So what are the shortcomings of the classical waterfall model? It is an idealistic one since it assumes that no developmental error is ever committed by the engineers during any of the लाइफ साइकिल फेजेस। वो ये समझता है कि कभी कोई एरर होंगे ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होता है, प्रैक्टिकली द इंजीनियर्स डू कमिट अ लार्ज नंबर ऑफ एरर्स इन ऑलमोस्ट एवरी फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। तो हर एक फेज में ये प्रॉब्लम आती है, एरर्स आते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट बीइंग यूज्ड नाउअडेज। नेक्स्ट मॉडल क्लास, दैट इज एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। इटरेटिव वाटरफॉल का मॉडल का मतलब ये है कि हम फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं पिछले वाले पाथ में। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारा एरर का करेक्शन हो जाए एज एंड व्हेन डिटेक्टेड, एंड इट इज ऑल्सो डिजायरेबल टू डिटेक्ट देम इन द सेम फेज इन विच दे अकर। ऑब्वियसली नेक्स्ट फेज में जाकर प्रीवियस फेज में जाना और उसके बाद करेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो फीडबैक ले लेगा। जैसे अगर ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है उस पर डिजाइन में आ रहा है तो डिजाइन जो है यहाँ से फीडबैक दे रहा है, इट इज गिविंग द फीडबैक कि आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी इजी एंड टू करेक्ट द bugs in the same phase in which they occur, right? So if so, this can reduce the effort to correct the bug, yes or no? So what is the disadvantage? So the disadvantage with this SDLC model is that it is applicable only to large and bulky software projects. इसको आप सिर्फ बड़े बड़े projects में लगाएंगे। क्यों? Because it is very hard to break a small software system into further small serviceable increments or modules, right? छोटे से प्रोडक्ट को और छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे इंटरवल्स में आप नहीं डिवाइड कर पाते हैं, so it is being implemented on a bulky model. Next is class prototyping model. Prototyping model क्या है, प्रोटोटाइप क्या होता है? सी प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। आप सिस्टम में क्या करने वाले हैं उसका आपने एक टॉय इम्प्लीमेंटेशन बना लिया है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप के अंदर कुछ फंक्शनल कैपेबिलिटीज होंगी, हो सकता है थोड़ी कम फंक्शनल कैपेबिलिटीज हो, वो इतना रिलायबल ना हो, उसका परफॉर्मेंस इतना एफिशिएंट ना हो, मगर फिर भी देयर इज अ नीड फॉर प्रोटोटाइप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो भी एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे while building or developing a prototype, that could be directly used in developing the final product. So a developed prototype can help the engineers to critically examine the technical issues which are associated with the product development. Yes or no? Then एक प्रोटोटाइप जो होता है उसको आप यूजुअली तब प्रेफर करते हैं जब कभी यूजर के रिक्वायरमेंट्स हमारे पास कंप्लीट नहीं है या फिर टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो कंप्लीट नहीं है। ओके, you can have a look. This is how a prototyping model looks like. There are certain initial requirements. You are designing, you are providing a prototype first of all, then there is customer evaluation, you are reviewing and updating, you are designing, and once the customer is satisfied, then you are developing, then you are testing, and then you are maintaining. So in this way you can go. नेक्स्ट इज क्लास एवोल्यूशनरी मॉडल। आप देख सकते हैं हर एक मॉडल जो है वो प्रीवियस वाले मॉडल से कुछ ना कुछ बेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव दीज मॉडल्स एंड दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। सो व्हाट इज एन एवोल्यूशनरी मॉडल? एवोल्यूशनरी मॉडल को हम लोग कभी कभी सक्सेसिव वर्जन्स मॉडल या फिर इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम एक वर्किंग मॉडल को बना लेते हैं और सब्सिक्वेंटली उसके अंदर हम लोग फंक्शनल इंप्रूवमेंट्स करते जाते हैं, कुछ नए नए फंक्शंस ऐड करते जाते हैं। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके एडवांटेज क्या है, यूजर को एक चांस मिलता है कि वो पार्शियली डेवलप्ड सिस्टम के साथ एक्सपेरिमेंट कर सके। अगर एरर है तो उसको भी वो रिड्यूस कर सकता है क्योंकि वो पूरे मॉड्यूल्स को पहले थरली टेस्ट करेगा, देन द सब्सिक्वेंट
model would be included. Like that it goes. Then what are the disadvantage? It is difficult to divide the problem into several versions that would be acceptable to the customer, which can be incrementally implemented और delivered. तो ये प्रॉब्लम डिवाइड को करना, प्रॉब्लम जो है उसको डिवाइड करना ताकि यूजर भी उसको एक्सेप्ट कर ले, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, एंड दैट also to be done incrementally. So this is a disadvantage as in the case of evolutionary or an incremental model. ये कैसा दिखता है? You can have a look over here. This is how it looks. There is a software concept, then there are certain preliminary, ये तो आपको phases पता है, like that it goes. तो आप देख रहे हैं what is happening. यहाँ से ये जा रहा है, then it is going back, coming, then it is going like that it is happening. तो सबसे पहले ये जा रहा है, and while it is developing a version, तो सबसे पहले हो सकता है कि कुछ कस्टमर का फीडबैक है, अगर आता है then we are incorporating it, we are eliciting it. अगर आपको कुछ वर्जन को डिलीवर करना, then you are delivering, and finally you are delivering the final version. तो इंक्रीमेंटल में आप एक स्टेप से आगे जाते जाएंगे and you are adding up the functions. Okay, so definitely evolutionary delivery is obviously better as compared to the previous models. Okay, next, and the last model, that is the spiral model. So the spiral model नाम से ही समझ में आ रहा है, it is in the form of spiral. ये कुछ spiral की तरह दिखेगा, इसके अंदर बहुत सारे लूप्स होंगे. एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स जो है स्पाइरल में वो फिक्स्ड नहीं होते हैं क्लास. हर एक लूप जो है वो एक फेज डिफाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल जो इनर मोस्ट लूप होता है दैट इज कंसर्न विद द फिजिबिलिटी स्टडी, नेक्स्ट लूप इज विद द रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट वन इज विद द डिजाइन एंड सो ऑन. और हर एक फेज को क्लास हम लोगों ने आप यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो, हम लोगों ने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया. दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेटिंग कर रहे हैं. लेट्स जस्ट गो थ्रू इट वन बाय वन. सो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वी आर जस्ट सेटिंग द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब ये, अगर कोई रिस्क है तो आपने उसको एग्जामिन कर लिया, दैट इज ऑल. लेकिन सेकेंड फेज जो हो रहा है आपका, सेकेंड जो क्वाड्रेंट है, उसके अंदर आप रिस्क को असेस भी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अगर असेस करने के बाद वो रिड्यूस भी हो जाता है. तो हेयर अ डिटेल्ड एनालिसिस इज कैरिड आउट फॉर ईच आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट रिस्क एंड देन द स्टेप्स आर टेकन टू रिड्यूस दोज रिस्क्स. फॉर एग्जांपल अगर एक रिस्क है that the requirements are inappropriate, तो आप प्रोटोटाइप को भी बिल्ड कर सकते हैं, like that you can proceed. Then थर्ड क्वाड्रेंट में आप डेवलप कर रहे हैं एंड वैलिडेट कर रहे हैं. ठीक है, so here the development and validation is the next level of the product after resolving the identified risks. Then in the fourth and the last quadrant you are reviewing and you are planning. क्या रिव्यू करेंगे? आप रिव्यू करेंगे जो आपने रिजल्ट्स अभी तक अचीव करे हैं विद द कस्टमर, एंड देन यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट इटरेशन which is around the spiral. Okay, progressively more complete version of the software gets built with each iteration. जितना आप इटरेशन एक इटरेशन करते जाएंगे, स्पाइरल के अराउंड जाते जाएंगे, उतना आपका वर्जन जो है कंप्लीटली बिल्ड होता जाएगा. ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर एंड यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स. नेक्स्ट क्लास, दैट इज द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. इसका मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बिट अबाउट SRS. ठीक है, लेकिन SRS बिल्ड करने से पहले आपको कुछ दिमाग में कुछ बातें होनी चाहिए. वो बातें ये होती हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, देन व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की जरूरत क्या है, देन व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, देन what exactly are the data input to the system and what exactly are the data output by the system. क्या input दिया जाएगा और क्या exactly data output हमें मिलेगा. Then what are the likely complexities that might arise while solving the problem. Problem को solve करते हुए क्या complexities आ सकते हैं. Then if there are external software or hardware with which the developed software has to interface, what exactly would be the data interchange formats with the external systems to be. ओके, तो पहले आपको ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है. देन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ SRS डॉक्यूमेंट. SRS के क्लास 2 पार्ट्स होते हैं यूजुअली. वन इज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, एंड सेकेंड इज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ना है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं. उसके बाद वी विल टॉक ऑफ द गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा.
सो लेट्स जस्ट टॉक ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या फंक्शनैलिटीज आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, आपके सिस्टम से आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो it is considered to perform a set of high level functions, for example f of I, and each function f of I of the system is considered for a transformation to a set of input data and to the corresponding set of output data. We take the assumption that like I of 1, I of 2 and so on up till I of n are the inputs, and let us just assume that from 0, O of 1, O of 2 and O of n so on goes with the n number of outputs. So what are the n number of inputs, what are the n number of outputs, we need to identify in the functional requirements. Okay, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये हुआ क्लास जहां पर आप डील कर रहे हैं ओनली विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फंक्शंस, जिसको आप फंक्शंस की तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मतलब फॉर एग्जांपल द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, द पोर्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम पोर्टेबल है नहीं है, यूजेबल है नहीं है, तो ये सब भी तो रिक्वायरमेंट्स है, बट वी कॉल इट एज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. सो हियर आई हैव शेयर्ड एन एग्जांपल with you people in order to understand the functional requirements in a better way. For example, consider the case of the library system. मान लेते हैं हमारे पास एक f1 फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है search book function. What is the name of the function? Search book function. और आप input जो दे रहे हैं that is an author's name. आपने author का नाम जो है उसको input दे दिया. What should be the output? आप चाह रहे हैं कि output should be the details of the author's books. उस author की क्या किताबें हैं और कहाँ पर ये books located है ये हमें मिल जाए. ठीक है, so here the function search book function f1 takes the author's name and transforms it to the book details. ठीक है, उसको वो उस डिटेलिंग में दे देगा, और अगर आप चाहें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आप डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपसे शेयर करती हूँ. फॉर एग्जांपल विद्रॉइंग द कैश फ्रॉम एटीएम. अगर आपको एटीएम से कैश विद्रॉ करना है तो इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? कुछ तो फंक्शंस हो सकते हैं. मान लीजिए हमने एक इसमें R1 फंक्शन दिखा दिया दैट इज विद्रॉ कैश. उसने हमें बोला है कि हमें कैश विद्रॉ करवाना है, कहाँ से? एटीएम से. अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है. डिस्क्रिप्शन ये है, द विद्रॉ कैश फंक्शन जो है इट फर्स्ट डिटर्मिन्स द टाइप ऑफ द अकाउंट. आपके अकाउंट किस टाइप का है जो यूजर के पास है. फिर वो देखता है कि आपके अकाउंट का नंबर क्या है फ्रॉम विच द यूजर विशेस टू विथड्रॉ द कैश. उसके बाद वो चेक करेगा कि उसके पास क्या सफिशिएंट बैलेंस भी है, सो दैट अगर सफिशिएंट बैलेंस है तभी तो उसको कैश मिलेगा, अदरवाइज वी आर गोइंग टू जनरेट एन एरर मैसेज. तो इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, तो आपने इसको ऐसे लिखना है लाइक वी हैव R1.1. like first what it is going to do, it is going to select the withdraw amount option. What is the input? Withdraw amount option. Output, user prompted to enter the account type. आपसे पूछा जा रहा है आपके अकाउंट का टाइप. देन R1.2 आपसे पूछा जा रहा है आपका टाइप, तो आपने सिलेक्ट करना है अकाउंट का टाइप. इनपुट में आपने दिया यूजर ऑप्शन, आउटपुट में आएगा एंटर द अमाउंट. देन R1.3 में आप क्या कर रहे हैं? You are getting the required amount. आपने इनपुट में क्या दिया? अमाउंट टू बी withdrawn in an integer value greater than 100 and less than 10,000 in the multiples of 100, like that. That is an example. आपको ऐसे ऑप्शंस में पूछता है. और आउटपुट में आप क्या देंगे? The requested cash and the printed transaction statement. प्रोसेसिंग में क्या होगा? The amount is debited from the user account if the sufficient balance is available, otherwise आपको error message मिल जाएगा. These are the examples of how a software is required and what are actually the functional requirements in a software. Then what are the properties of a good SRS document? एक अच्छा SRS document होने के क्या properties हो सकते हैं? पहला property है it should be concise. concise का मतलब ये है, concise का मतलब है छोटा, but at the same time it should be unambiguous, it should be consistent and it should be complete, right? Second, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये है कि वो इतना अच्छा आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए दैट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज इजी टू मॉडिफाई. लेकिन इन प्रैक्टिस आपको ये बता दिया जा रहा है कि एसआरएस डॉक्यूमेंट जो है इट अंडरगो सेवरल रिविजन्स टू कोप अप विद द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ओके, देन द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड एसआरएस सिस्टम इज ब्लैक बॉक्स व्यू. ब्लैक बॉक्स व्यू का मतलब आप सिर्फ वही स्पेसिफाई करेंगे कि आपके सिस्टम को क्या करना है, एंड यू आर रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्टेटिंग हाउ इट इज गोइंग टू अकम्प्लिश दोज एक्ट्स. ओके, तो वो कैसे करेगा वो उसके ऊपर फोकस नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा उसके ऊपर आप उसको बोलते हैं ब्लैक बॉक्स व्यू. ब्लैक बॉक्स व्यू के अंदर हम लोग उसको दिखा सकते हैं इन एन एसआरएस डॉक्यूमेंट. देन द कॉन्सेप्चुअल इंटेग्रिटी होना चाहिए.
देन रिस्पॉन्स टू अनडिजायर्ड इवेंट्स, अगर ऐसे कुछ इवेंट्स आ जा रहे हैं जो डिजायर्ड नहीं है, देन ऑल्सो इट शुड रिस्पॉन्ड। ओके, देन इट इज वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थे क्या वो इम्प्लीमेंटेशन में मेट हुए भी है या नहीं हुए। ऑलराइट, देन मान लीजिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं एंड इट इज विदाउट एन एसआरएस डॉक्यूमेंट, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सी, without developing the SRS document, the system would not be implemented according to the customer. कस्टमर को क्या चाहिए आप उसके हिसाब से बना ही नहीं रहे हैं। Software developers would not know whether they want what they are developing is what exactly required by the customer. आप क्या बना रहे हैं वो कस्टमर को जरूरत है भी कि नहीं, ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। एंड विदाउट एन SRS डॉक्यूमेंट इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द मेंटेनेंस इंजीनियर्स टू अंडरस्टैंड कि आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। एंड it will be very much difficult for the user document writers to write the user manuals properly without understanding the SRS document. Yes or no? नेक्स्ट टॉपिक इज क्लास डिसीजन ट्री। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री आपको एक ग्राफिकल व्यू दे देता है ऑफ द प्रोसेसिंग लॉजिक विच इज इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। हर स्टेज पर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, उस डिसीजन को लेने के लिए उसकी प्रोसेसिंग में जो लॉजिक इन्वॉल्व होता है उस लॉजिक को अगर हम ग्राफिकली व्यू करेंगे दैट इज समथिंग नोन एज डिसीजन ट्री। ओके, अब आप ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो एजेस होते हैं ना क्लास डिसीजन ट्री के, दे रिप्रेजेंट द कंडीशंस, और जो लीफ नोड्स हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द एक्शंस टू बी परफॉर्म्ड डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ टेस्टिंग ऑफ द कंडीशन। एग्जांपल ले लेते हैं LMS का, दैट इज योर लाइब्रेरी मेंबरशिप ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। इसमें हमारे को 3 ऑप्शन सपोर्टिव चाहिए, एक है न्यू मेंबर, एक है रिन्यूअल और एक है कैंसिल मेंबरशिप। तो अगर मान लीजिए हमारे पास अगर न्यू मेंबर ऑप्शन है तो इसका डिसीजन क्या होगा? Whether the new member option is selected, then the software can ask the details like आपके नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, और इसके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंटर करी जाएगी तो उसका एक मेंबरशिप रिकॉर्ड बन जाएगा और बिल प्रिंट कर दिया जाएगा फॉर द एनुअल मेंबरशिप चार्ज, और साथ में आप चाहें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए अगर आपके पास रिन्यूअल ऑप्शन है, तो रिन्यूअल ऑप्शन में आप डिसीजन क्या लेंगे? आप डिसीजन ले सकते हैं LMS कैन आस्क कि आपका मेंबर का नाम क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या है, और आप चेक करेंगे क्या वो वैलिड मेंबर है या नहीं। तो उसके ऊपर एक्शन क्या होगा? एक्शन ये होगा अगर मेंबरशिप वैलिड हुई तो उसकी एक्सपायरी डेट को आप अपडेट कर देंगे, मेंबरशिप बिल प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज आप एक एरर मैसेज दे सकते हैं। लाइकवाइज एक और ऑप्शन है दैट इज द कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन आपके LMS में। तो कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन में डिसीजन आपको ये लेना पड़ता है, अगर आपको कैंसिल मेंबरशिप ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो आप सॉफ्टवेयर से पूछते हैं कि मेंबर का क्या नाम है और उसका मेंबरशिप नंबर क्या है, और उसके ऊपर आप एक्शन क्या लेंगे? एक्शन आप ये ले सकते हैं अगर मेंबरशिप इज कैंसिल तो आप उसका बैलेंस अमाउंट ड्यू जो भी है वो आप प्रिंट करा देंगे, एंड फाइनली द मेंबरशिप रिकॉर्ड इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द डेटा बेस। तो देखिए अगर आप इसको डिसीजन ट्री में रखेंगे देन हाउ इट इज गोइंग टू डू। अगर आपका वैलिड सिलेक्शन नहीं है तो दैट मीन्स इट इज एन इनवैलिड ऑप्शन एंड यू आर डिस्प्लेइंग एन एरर मैसेज। अगर वैलिड सिलेक्शन है देन वी हैव 3 ऑप्शंस, ईदर इट इज अ न्यू मेंबर, अ रिन्यूअल और अ कैंसिलेशन। न्यू मेंबर है तो मैंने आपको ऊपर बताया इट इज आस्किंग फॉर द नेम, एड्रेस, क्रिएटिंग द मेंबरशिप डिटेल्स एंड प्रिंटिंग द बिल्स, और यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंगली इट इज गोइंग टू गिव यू द थिंग्स। जो एजेस हैं आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं और लीफ नोट्स में आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब डिसीजन ट्री के साथ ही क्लास हमारा एक टॉपिक होता है दैट इज डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक जो होता है इसको टेब्यूलर या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाता है। जो अपर रोज होते हैं टेबल के ये कुछ कंडीशंस दिखाते हैं जो इवैल्यूएट करने हैं, जो लोअर रोज होते हैं टेबल के ये दिखाते हैं कि क्या एक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और जो कॉलम होता है टेबल के अंदर उसको हम बोलते हैं क्लास रूल। क्या बोलते हैं? रूल। रूल का मतलब ये है अगर कंडीशन ट्रू होगा तभी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं दिस इज द थिंग। अगर मान लीजिए वैलिड सिलेक्शन ही नहीं है तो ये सब आपने डैश कर दिया, ये सब प्रिंट होने का कोई मतलब नहीं है। दिस इज नाउ अ डिसीजन टेबल फॉर LMS। अब मान लीजिए कि अगर आपने एक न्यू मेंबर लिया है तो लेट्स से इफ इट इज अ वैलिड सिलेक्शन एंड इफ इट इज अ न्यू मेंबर, ठीक है, नेक्स्ट आपने दोनों को नो कर दिया। देन अगर आपने सिलेक्ट किया कि वो वैलिड सिलेक्शन है, न्यू मेंबर नहीं है, लेकिन वो रिन्यूअल करना चाहता है, लाइकवाइज यू कैन प्रोसीड। और इसके ऊपर कंडीशंस के ऊपर जो आप एक्शंस ले रहे हैं वो भी आप यहाँ पर टेबल से देख सकते हैं। अगर वो वैलिड सिलेक्शन नहीं है देन यू आर सिंपली डिस्प्लेइंग द एरर मैसेज।
अगर मान लीजिए कि वो एक नया मेंबर है, देन यू आर आस्किंग द मेंबर्स डिटेल्स, यू आर बिल्डिंग द रिकॉर्ड एंड देन यू आर जनरेटिंग द बिल्ड अकॉर्डिंगली। आप डिसाइड कर सकते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है। सो फ्रॉम द अबव टेबल यू कैन वेरी इजीली से दैट इफ द वैलिड सिलेक्शन इज फॉल्स, अगर वैलिड सिलेक्शन फॉल्स होगा देन एक्शन टेकन फॉर दिस इज डिस्प्ले मैसेज। Similarly, the actions taken for other conditions could be inferred from the table. I think ये आप अपने आप ही infer कर सकते हैं टेबल से, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे को एक डिसीजन टेबल और डिसीजन ट्री का आपको मैंने एक ओवरव्यू दे दिया जो मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट कम्स द सॉफ्टवेयर डिजाइन फेज। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या है क्लास? सॉफ्टवेयर डिजाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप यूजर रिक्वायरमेंट्स को एक सूटेबल फॉर्म में क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो, विच इज गोइंग टू हेल्प द प्रोग्रामर इन द सॉफ्टवेयर कोडिंग एंड फर्दर इन द इम्प्लीमेंटेशन। यस और नो? An SRS document is created, whereas for coding and for implementation there is a need of more specific and detailed requirements. हमें और थोड़ा स्पेसिफिक जानना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन आप देख सकते हैं, तो SDLC का यू कैन से इट इज द फर्स्ट स्टेप जिसका कॉन्सेंट्रेशन है प्रॉब्लम डोमेन से सॉल्यूशन डोमेन में। अभी तक हम सिर्फ प्रॉब्लम को ही ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इन अ ब्रॉडर वे वी आर गोइंग टू टॉक, बट हेयर व्हेन वी टॉक ऑफ द डिजाइन फेज आवर व्यू हैज नैरोड नाउ। ठीक है, अब ये नैरो हो जाएगा, और नैरो कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्योंकि हमें थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। ओके, सो हेयर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द फुल रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर बीइंग मेंशन्ड इन द SRS, दैट इज फॉर श्योर। देखिए, देन सॉफ्टवेयर डिजाइन के कुछ लेवल्स होते हैं क्लास। द फर्स्ट लेवल इज द आर्किटेक्चरल डिजाइन। आर्किटेक्चरल डिजाइन में ये होता है कि हम चेक करते हैं कि we are going to identify the software as a system with many components interacting with each other. जो components हैं वो एक दूसरे के साथ interact कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, that is something known as architectural design. High level design का मतलब ये हुआ that it is going to break the single entity multiple component concept of the architectural into less abstracted view. इसका मतलब क्या हुआ, जो भी modules हैं वो आपस में interaction और better way में करेंगे। और थर्ड डिजाइन आप मान सकते हैं that is the डिटेल्ड डिजाइन। इसमें क्या होता है, आपने अभी तक जितने भी सब सिस्टम्स देखे हैं प्रीवियस टू डिजाइंस का, उसका आपने लॉजिकल स्ट्रक्चर बना दिया एंड देन दे आर इंटरफेसिंग विद ईच अदर प्रॉपर्ली और नॉट। देन कम्स मॉड्यूलराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलराइजेशन एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप पूरे सॉफ्टवेयर को मल्टीपल डिस्क्रीट या इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, फिर इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर काम करते हो। लाइक यू कैन से दैट दिस इज फॉलोइंग द क्राइटेरिया ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर। इस तरीके का आप स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो करते हो। मॉड्यूलराइजेशन की क्लास एडवांटेज क्या है? स्मॉलर कंपोनेंट्स आर इजियर टू मेंटेन, प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एस्पेक्ट्स। ये सब अब हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप समझ पा रहे हैं। Desired level of abstraction could be brought in the program. Then components with high cohesion could be reused again. इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। Concurrent execution can be made possible. Concurrently अगर आपको कुछ execute करना है तो ये possible है, and desired from the security aspect. Okay. अब यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है हमने, कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी का क्या मतलब होता है? बाय सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन वी मीन that the coded instruction will be executed one after the another, implying one portion of the program being activated at any given time. लेकिन concurrency का मतलब ये है we are providing the capability to the software to execute more than one part of the code in parallel to other. Possible है आप एक से ज़्यादा कोड को एक साथ in parallel आप उसको रन करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्पेल चेक फीचर इन वर्ड प्रोसेसर इज अ मॉड्यूल ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कैन रन अलोंगसाइड विद द वर्ड प्रोसेसर इटसेल्फ। ओके, अब देखिए क्लास, जहां पर हम लोगों ने मॉड्यूलराइजेशन वाली टॉपिक की बात कर ली होती है वहीं पर हमें दो बातें और पता होनी चाहिए और उसको मैं यहीं कवर कर लूंगी, दैट इज कपलिंग एंड कोहेशन। So when a software is modularized, its task is divided based on its characteristics. तो उन measures को हम बोलते हैं class coupling and cohesion. First of all, let's just talk about cohesion. Cohesion क्या होता है? Cohesion is a measure that defines the degree of interdependability within the elements of a module. आपने एक सिस्टम को वेरियस मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, उस मॉड्यूल में एक मॉड्यूल के अंदर ही क्या डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी है उसको हम बोलेंगे कोहेशन। कोहेशन के भी फर्दर कुछ टाइप्स होते हैं, उनको आप यहीं पढ़ लीजिए। फर्स्ट होता है कोइंसिडेंटल कोहेशन। कोइंसिडेंटल कोहेशन का मतलब है ये अनप्लान्ड है, रैंडम कोहेशन है। इसका मतलब ये है it might be the result of breaking down the program into smaller modules for the sake of modularization because it is unplanned. इसीलिए क्या होता है, confusion create करता है और इसीलिए हम इसको generally accept नहीं करते।
नेक्स्ट इज द लॉजिकल कोहेशन। लॉजिकल कोहेशन का मतलब ये है यहाँ पर आप एलिमेंट्स को एक साथ एक मॉड्यूल में लेकर आते हैं, दैट इज समथिंग नोन एज लॉजिकल कोहेशन। देन टेम्पोरल कोहेशन। टेम्पोरल कोहेशन का मतलब ये है दैट दे आर बीइंग प्रोसेस्ड एट द सिमिलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही वक्त में। टेम्पोरल का मतलब ये हुआ टाइम कोहेशन। नेक्स्ट प्रोसीजरल कोहेजन। प्रोसीजरल कोहेजन का मतलब ये है जब एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स को आप इकट्ठा कर दे रहे हैं उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में काम करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं एक प्रोसीजर में आप रखते जा रहे चीजों को, सो दैट इज प्रोसीजरल कोहेजन। नेक्स्ट कम्युनिकेशनल कोहेजन। कम्युनिकेशनल कोहेजन का मतलब ये है जब एक मॉड्यूल के एलिमेंट्स को आप एक साथ ग्रुप कर दे रहे हैं, देन दे शुड बी एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एंड दे शुड वर्क ऑन द सेम डेटा, दैट इज समथिंग नोन एज कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट सीक्वेंशियल कोहेजन। सीक्वेंशियल कोहेजन का मतलब ये है जब एलिमेंट को आपने इकट्ठा ग्रुप कर दिया तो उससे क्या हुआ, एक सीक्वेंस बन जाता है, क्योंकि एक एलिमेंट का जो आउटपुट होता है दैट इज बीइंग सर्विंग एज द इनपुट टू अनदर एंड देन टू अनदर एंड देन टू अनदर एंड सो ऑन, सो इट इज फॉलोइंग अ सीक्वेंस, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल कोहेजन। नेक्स्ट इज functional cohesion. Functional cohesion is said to be the highest degree of cohesion and it is highly expected. क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं एक मॉड्यूल में, एक फंक्शनल कोहेजन में, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं ताकि दे कैन कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल वेल डिफाइंड फंक्शन, ताकि आप उसको बार बार रीयूज कर पाए। सो इन टोटलिटी यू कैन से दैट कोहेजन जो है, जो कि इंट्रा डिपेंडेबिलिटी बताता है एक मॉड्यूल के अंदर, इट इज ऑफ 7 टाइप्स, राइट। देन कम्स कपलिंग। कपलिंग जो है इट इज द मेजर ऑफ डिफाइनिंग द लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेबिलिटी अमंग द मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में जो आपने मॉड्यूल्स डिवाइड करे हैं वो आपस में कितने इंटर रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं कपलिंग। हम लोग क्या प्रेफर करते हैं एक सिस्टम के अंदर कि कपलिंग जो होनी चाहिए दैट शुड बी लोअर, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल दैट द प्रोग्राम इज परफॉर्मिंग बेटर। लोअर द कपलिंग, बेटर इज द प्रोग्राम। फर्दर अगर आप देखेंगे तो इसके भी 5 टाइप्स ऑफ कपलिंग वी हैव। फर्स्ट इज कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग का मतलब ये होता है जब एक मॉड्यूल जो है वो डायरेक्टली एक्सेस करना चाह रहा है या मॉडिफाई करना चाह रहा है कंटेंट, किसी दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट को, तो उसको हम बोलते हैं कंटेंट कपलिंग। सेकेंड कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब ये है जब मल्टीपल मॉड्यूल्स के पास रीड या राइट एक्सेस ग्लोबल डेटा के ऊपर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन कपलिंग। नेक्स्ट कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का मतलब ये है अगर एक मॉड्यूल जो है वो किसी दूसरे के फंक्शन को डिसाइड कर रहा है या उसके एग्जीक्यूशन के फ्लो को ही चेंज कर दे रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग। नेक्स्ट स्टैम्प कपलिंग। स्टैम्प कपलिंग का मतलब है दे आर गोइंग टू शेयर द कॉमन डेटा स्ट्रक्चर एंड दे कैन वर्क ऑन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एक ही डेटा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लेट्स जस्ट से कि वो कोई डिफरेंट पार्ट पे काम कर रहा है, कोई डिफरेंट पार्ट पे एट द सेम टाइम इज पॉसिबल एंड इट इज नोन एज स्टैम्प coupling. And the last coupling, that is data coupling. Data coupling का मतलब ये है when two modules interact with each other by the means of passing data as a parameter. If a module passes the data structure as a parameter, then receiving the module it should use all of its component. अगर आप parameter pass कर रहे हो तो दूसरा वाला module उस parameter को use कर सक रहा है तो उसको हम बोलेंगे data coupling. लेकिन आइडियली हम बोल सकते हैं दैट नो कपलिंग इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। कोई भी कपलिंग को अभी तक हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, नो कपलिंग इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास देयर आर सर्टेन डिजाइन स्ट्रैटेजीज जो आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए दो तरह के डिजाइन होते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर डिजाइन और एक होता है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। वन इज सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड अदर वन इज स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। Software design is a process to conceptualize the software requirements into software implementation. Software design में आप requirements को straight away software में implement करते हैं. Software design takes user requirements as challenges and it is trying to provide you an optimum solution. While the software is being conceptualized, a plan is chalked out to find the best possible design for implementing the intended solution. That is software design. Now what is structured design? Structured design is the conceptualization of the problem into several well-defined elements of the solution. It is basically concerned with the solution design. Structured design को हम कभी-कभी solution design भी बोलते हैं because it is focusing how well and how better the problem is to be solved. कितने अच्छे से solve करा जा सकता है। एक good structured design वही है जिसके पास cohesion high हो, most common asked question in the examination, और उसका coupling कम होना चाहिए. We should have high cohesion and low coupling arrangements. Okay. Next,
नेक्स्ट इज क्लास द सर्टेन डिजाइन प्रोसेस. देन डिजाइन प्रोसेस में जब हम चलेंगे तो आप देख सकते हैं द होल सिस्टम इज बीइंग सीन कि किस तरीके से डेटा जो है फ्लो कर रहा है. तो पूरे डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है वो जानने के लिए क्लास आपको एक चीज पता होना चाहिए, दैट इज नोन एज डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम. इट डिपिक्ट्स हाउ द फंक्शंस चेंज द डेटा एंड द एंटायर थिंग्स. एक होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये सब हमने डिटेल में करना है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन जो है इट वर्क्स ओनली अराउंड द एंटिटीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंस्टेड ऑफ द फंक्शंस. फंक्शन के अब इर्द गिर्द नहीं घूमेगा, ये एंटिटीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के इर्द गिर्द घूमता है. Then comes what are objects? Objects क्या होते हैं? All the entities which are involved in the solution design they are known as objects. वो सारे entities जो कि solution design में involve होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? Objects. For example, person हो गया, bank हो गया, company हो गया, customers हो गया, like that. क्लास क्या होता है? इट इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ये सब बातें आपको मालूम भी है while you are going through the programming topics also. तो क्लास क्या है? जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूडेड है which an object can have और मेथड्स भी हैं. इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको मालूम होना चाहिए. वन इज इनकैप्सुलेशन, देन इनहेरिटेंस एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म. इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं. यू आर इनकैप्सुलेटिंग इट, you are bundling them together, so it is also known as information hiding. Then comes inheritance. Inheritance का मतलब ये है कोई similar classes हैं, you are stacking them together where the lower classes or the subclasses can import and implement and reuse the variables and methods from their immediate superclasses. वो अपने ही superclasses के कुछ properties को inherit करेंगे. तो we all individuals are different, but we have inherited a few characteristics of our parents. Likewise, it has been involved over here. देन व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जहां पर मेथड्स जो हैं वो सिमिलर टास्क कर सकते हैं बट दे कैन वेरी इन द आर्ग्यूमेंट्स एंड दे आर आल्सो बीइंग असाइन्ड विद द सेम नेम. ओके, एंड इट अलाउज अ सिंगल इंटरफेस टू परफॉर्म द टास्क फॉर डिफरेंट टाइप्स. तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म. ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिटेल में करने हैं, ठीक है, तो हम करेंगे इसको. देन कम्स द सॉफ्टवेयर डिजाइन अप्रोच. अब सॉफ्टवेयर के दो अप्रोचेस होते हैं क्लास. एक होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप डिजाइन अप्रोच. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस. एक होता है डिजाइन में आपका टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन का मतलब यही हुआ क्लास कि आप जनरलाइज्ड से स्पेसिफिक में जा रहे हैं, और बॉटम अप का मतलब हुआ आप स्पेसिफिक से, यू कैन राइट इट लाइक इफ यू आर गोइंग फ्रॉम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज टॉप डाउन. और बॉटम अप का मतलब हुआ फ्रॉम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स इफ यू आर गोइंग टू द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज बॉटम अप. इसका क्या मतलब हुआ? टॉप डाउन टेक्स द होल सॉफ्टवेयर सिस्टम एज वन एंटिटी. टॉप डाउन में आप पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक एंटिटी लेकर कंसिडर करते हैं, फिर उसको सब सिस्टम्स में डिवाइड करते रहते हैं और उनके कंपोनेंट्स को डिवाइड करते रहते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड द प्रोसेस कीप्स ऑन रनिंग अंटिल द लोअर मोस्ट लेवल ऑफ द सिस्टम इज बीइंग अचीव्ड. ठीक है, उसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच. लेकिन बॉटम अप में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक से लेकर आप हायर फंक्शनैलिटी से इंप्रूव कर करके जाते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग मारुति 800, सो दैट इज मोर स्पेसिफिक. उसके बाद इट इज गोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्स. जब आप ऐसे अप्रोच लेकर जा रहे हैं तो उसको हम उसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट यू आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल एरिया, दैट इज बॉटम अप्रोच. और मान लीजिए यहाँ पर इफ लेट्स जस्ट से इफ आई एम टॉकिंग ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स में हमें पर्टिकुलरली कौन से बर्ड की बात करें, लेट मी जस्ट से दैट आई एम टॉकिंग ऑफ लेट्स जस्ट से पेकिंग वुड. कोई भी एक पर्टिकुलर उसमें जब मैं आई मीन टू से जब मैं जनरल मोर क्लासिक से चीजें से स्पेसिफिक में जाती जा रही हूँ, so that is a top down approach, and the reverse vice versa is the approach known as of bottom up design. Okay, so with this मैं अभी अपना ये लेक्चर को एंड कर दे रही हूँ. अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, दे आर द डिजाइन टूल्स. अभी हमारा डिजाइन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. अब डिजाइन टूल्स में क्लास में पूरा कंप्लीट करवाऊंगी कि डीएफडीज क्या है. लेट मी जस्ट टेल यू what we are going to talk in the next class. हम सारे के सारे डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे. डायग्राम्स में क्या क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द डेटा फ्लो डायग्राम्स, देन वी हैव द स्टेट डायग्राम्स, देन वी हैव द यूएमएल्स, देन वी हैव द ऑब्जेक्ट डायग्राम्स, then we have the state transition. चाहिए मैंने mention कर दिया state transition diagrams. Then we have the class diagrams.
जिसके कुछ कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ रहे थे, लाइक दैट। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम्स है, दिस इज बीइंग इन्वॉल्व इन द डिजाइन फेज, जो आपके डिजाइन फेज में इंक्लूडेड है। इसको हम लोग कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लें। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर अगर हमारा थोड़ा लेंदी जा रहा है तो मैं उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हो सकता है मैं 3 डायग्राम डिस्कस कर लूँ, एंड लाइकवाइज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी continuing with that, but that would depend on my speed in the next lecture. So that is all for today class. I hope you must have understood all the concepts thoroughly. आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। इधर वी इग्नोर दिस चैप्टर, दिस पेपर, एंड वी लेफ्ट इट बिहाइंड, और हम देखते हैं पेपर में कि सारे के सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो हमें इतना बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसमें कुछ प्रॉपर न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हम लोग फर्दर करते जाएंगे, then we will be having, but right now for the next lecture this is our plan, we will be talking only of the diagrams with suitable examples I will be giving, and we will be having a detailed discussion in terms of the diagrams also. Okay, so that is all for today. If you have liked our lecture, if you are understanding the concepts, please do like, share and comment, and please do share as much as you can. So that is all for today class. I am taking your leave. Thank you. I'll be meeting you soon in the next lecture. Okay, so that is all for today. Thank you.